Hello students, today we are going to start political science and its third one lesson is political parties. In this lesson we are focusing our attention on different types of political parties. Actually in our country we have multi-party system. So far as we have some national parties, we have some regional parties and some local parties are present in our country. In our last one chapter, we studied the working of constitution and election procedure. Actually, political parties are a link that connects common people, democracy, and representation and elections. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy. Actually, political parties are beneficial for democracy because political parties create a healthy atmosphere for democracy. Without political parties, a democracy cannot be completed. In democratic system, we can see different types of political parties are present and they compete for getting power. So far as that competition should be in fair atmosphere, that competition should be healthy. If that atmosphere is healthy, then the democratic system is good for all elements of society. So लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन हिंदी. जैसे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हम देखते हैं कि इंडिया में है, तो इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग अलग लेवल पे देखी जा सकती है. जैसे कि कुछ पार्टीज़ है कि जिनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है, कुछ पार्टीज़ ऐसी है कि जिनको रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है और कुछ छोटी पार्टीज़ भी होती हैं. अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. इलेक्शन में वो अपने एजेंडा को और अपने आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, लोगों के सामने जाने का काम करते हैं और इलेक्शन में उतरने का काम करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हेल्दी बनाने का काम किया जाता है. इन योर स्कूल एंड सराउंडिंग्स यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, organizations working, or any group, they are working for getting an objective. Some organizations take initiative in resolving social problems. You may have read about the various types of movements and their work. Just as there are active groups, institutions and movements, similarly there are political parties who contest elections. When we think about different types of organizations, actually when we go to school, at that time we can see various types of institutions, groups, organizations are working for getting a goal. Actually different types of institutions, groups and organizations, they have their respective goals or respective aims, and for gaining that respective goal they work. And political party, it is also a group. How it is also a group or it is also an institution? Because political party has also one objective, it has also one goal, and that goal is to achieve power or to be in power. That is the aim or that is the goal of each political party. But the working pattern of these institutions and political parties is different, because political parties are working in large areas and these institutions or organizations or social groups are working in small areas. So the working pattern of institutions and political parties is different. Now we have to understand what is the meaning of political parties. Actually on the screen of our
video we can see different types of logos are given. Actually these logos are related with different types of political parties. Now we have to understand the definition of political parties. Political party is an organized group of people who have the same ideology. See now, every political party has different types of ideologies. When we think about Congress, BJP or any another political party, they have different types of ideologies and they are propagating their ideologies, or who otherwise have the same political positions and who feed candidates for elections in an attempt to get them elected and thereby implement the party's agenda. So every political party, they have their own agenda. Even they represents the mass of society, because they think that which ideology is propagated or which ideology is present in society, that ideology they take and they represent. Let's understand this point in Hindi. पॉलिटिकल पार्टीज मतलब ऐसे ग्रुप को कहा जाता है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट एडवर्टीजमेंट करने का काम उस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से किया जाता है. अब पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतारे जाते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, वो अपने एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और लोगों को परसुएट करने का काम, लोगों को अट्रैक्ट करने का काम इन पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से और उनके एजेंडा के माध्यम से किया जाता है और इलेक्शन जीतने का प्रयास किया जाता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है. अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है पावर में आती है, कंपटीशन चलता है. अब ये कंपटीशन जो होता है अलग अलग पार्टीज के बीच में, तो ये कंपटीशन हेल्दी होता है, अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए. अब ये कंपटीशन जो है वो एंड होता है वोट के माध्यम से, क्योंकि जो जनता है, लोग हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हैं, अपना वोट देते हैं और जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार मिलता है. अब गवर्नमेंट बनाने के लिए हम देखते हैं कि कंपटीशन चलता है. हर एक पार्टी जो होती है वो सीट चाहती है, हर एक पार्टी चाहती है कि वो पावर में आए, सत्ता में आए, उसके लिए कंपटीशन चलता है. वहाँ पे इलेक्शन के प्रोसीजर के माध्यम से हर एक पार्टी अलग अलग अपने एजेंडा को प्रेजेंट करने का काम या अलग अलग घोषणाएं देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है. अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? एंड द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज टू बी इन पावर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी. एक्चुअली द एम बिहाइंड each political party is to achieve power. Achieve power through elections is the main objective of political parties. Thus, different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. This is the most important characteristic we can see here. To be in power मतलब सत्ता में रहना. हर एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहना चाहती है और उसके लिए वो इलेक्शन में उतरती है, इलेक्शन में घोषणाएं होती है, लोगों को अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है और इलेक्शन जीतने का प्रयास किया जाता है. तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो प्रयास करती है कि वो सत्ता में आए, उसके पास पावर हो, वो गवर्नमेंट बना सके. तो इस तरीके से वो कंपटीशन करती है. अब ये कंपटीशन जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए. लेकिन ये कंपटीशन कैसे होना चाहिए? अच्छे एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा होता है. तो ये पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, टू बी इन पावर. नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. I told you that each political party has its own ideology. When we think about Congress, it possesses secularism, socialism. When we think about BJP, Bharatiya Janata Party, it possesses Hindutva. So such type of ideologies each party possesses, and they propagated that ideology in front of people.
The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party. If people think that this ideology is good for them, then they cast their vote for that party. Social support received by a political party is called the mass base of political party. If social support will get to any political party, that party is called mass base political party. मतलब यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने का काम करती है, लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। अब लोगों को समझो कोई आइडियोलॉजी पसंद आती है तो लोग उस पार्टी की तरफ जाते हैं, कोई आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती है तो उसको अपोज करते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है कि जिनको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी का बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है, उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे हिस्से को और ऐसे पार्टी को मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। अब ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, टू परस्यू एंड आइडियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट इज मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू सिमिलर, हेंस इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द parties on the basis of ideologies. Nowadays, whatever the political parties are possessing their ideologies, actually their ideologies are completely same so far as we can't differentiate among their ideologies. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी जो आइडियोलॉजीज़ है वो आज के मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में उनमें डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एक ही तरीके से देखी जा सकती है, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। आई टोल्ड यू दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन आइडियोलॉजी एज वेल एज its own agenda. Without agenda, the political party cannot stand. So every political party has its own agenda. To have a party agenda, political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. They implement the agenda after they get political power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. Let's understand this point in Hindi. Political parties अपने पार्टी का एजेंडा अपने आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाती है, और जो पॉइंट्स उस एजेंडा में उन्होंने इंक्लूड किए हैं उन पॉइंट्स को पूरा करने का काम जब वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तब करती है। समझो कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना नहीं सकती, अपोजिशन में जाती है, तब भी वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा को हमेशा ही पूरा करने का प्रयास करती रहती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना एजेंडा बनाती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग एजेंडा होता है और उस एजेंडा को पूरा करने के लिए वो प्रयास करती रहती है। नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी हम देखते हैं कि वो इलेक्शन में उतरती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन में वोट हासिल करने का काम करती है, और वोट समझो ज़्यादा मिलते हैं तो वो अपना गवर्नमेंट बनाती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। The political party which gets majority in elections forms the government. The parties which do not get majority act as opposition parties. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है कि वो गवर्नमेंट बनाए। समझो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे वोट मिलते हैं तो वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, समझो किसी पार्टी को अच्छे वोट या कम वोट मिलते हैं तो वो अपोजिशन में जाती है। तो दोनों भी पार्टीज इसेंशियल होती है, गवर्नमेंट चलाने वाली पार्टी और गवर्नमेंट को वॉच डॉग का काम करने वाली, मतलब जो कि अपोजिशन पार्टी होती है। दोनों भी पार्टीज गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल होती है, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए नेसेसरी होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, तो लिंक का रोल करती है। मतलब समझो कोई अपोजिशन पार्टी है, वो क्या करते हैं कि जो जनता के जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन पीपल की जो प्रॉब्लम्स है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है।
और समझो गवर्नमेंट की कोई अच्छी स्कीम है तो उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इवन जो रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट की पार्टी होती है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि लोगों के मतलब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वहाँ के कॉमन पर्सन्स के प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और पार्लियामेंट में समझो कोई नई स्कीम या कोई नई योजना लॉन्च की जाती है तो उसका या उसकी इंफॉर्मेशन कॉमन पीपल तक पहुंचाने का काम उन एमपीज और एमएलएज के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक का रोल प्ले करती है बिटवीन द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। Political parties communicate the demands and complaints of people to the government. The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. Now next one point is changing nature of political party system in India. When we think about the nature of political party, it is going to change as per the period, as per the modernization. The nature of all political parties is also going to change. The Congress was a strong political party in the post-independent era. अब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा मतलब 1947 के बाद का एरा को पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा कहा जाता है और उसके पहले के एरा को प्री इंडिपेंडेंट एरा कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी कंसिडर की जाती है। एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंट एरा में कांग्रेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इस पार्टी का गठन जो था वो इंडिया को फ्रीडम हासिल करने के लिए किया गया था। बाद में 1947 के बाद ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। इन्होंने इसके माध्यम से इलेक्शन कंटेस्ट किए गए और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में ये चलती आ रही है। अब इस पार्टी के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो आज तक हम देखेंगे 1947 के बाद और आज तक का समय देखेंगे, जनरली हम देखेंगे 1977 तक का समय देखेंगे तो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम थी, क्योंकि एक ही पार्टी का गवर्नमेंट वहाँ पे बनता था। स्टेट्स में हो या सेंटर में हो, दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी का मतलब सिंगल पार्टी का ही गवर्नमेंट बनता था। मतलब स्ट्रांग दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं थी। तो इसलिए इस सिस्टम को डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है। Next one, the non-Congress parties came together and challenged a single dominant party system in India. अब हम देखेंगे कि 1947 के बाद और 1977 तक मतलब 75 तक हमने हिस्ट्री के सेकंड वन लेसन में पढ़ा है कि 1975 में इंदिरा गांधी के समय पे इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। तो इमरजेंसी के कारण बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए और तभी उसी समय जब इमरजेंसी हट गई थी 1977 का समय आ गया था, तब सब छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आके उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी और इस जनता पार्टी के माध्यम से इलेक्शन कंटेस्ट किए गए और बाद में उनके माध्यम से इलेक्शन जीते भी गए। तो ये एक नॉन कांग्रेस पार्टी थी। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड। मतलब 1989 तक हम देख सकते हैं कि सिंगल पार्टी का ही गवर्नमेंट होता था। स्टेट्स में हो या सेंटर में हो, एक ही पार्टी रूलिंग पार्टी के तौर पे काम करती थी। लेकिन 1989 में एक ऐसा दौर आया, ऐसा समय आया कि उस समय पे एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिलना पॉसिबल नहीं रहा। तो इसलिए कोलूजन टाइप का गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गया। उसी में से यूपीए और एनडीए ये जो दो टर्म्स है वो राइज हो चुकी है।
एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इस तरीके से एक कोलिजन टाइप के गवर्नमेंट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। सिंस देन different parties began to come together to form coalition governments. Both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition governments. तो ये coalition type के governments बाद में establish होना start हो गया। The belief that coalition governments brings instability, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे कि कोलिजन गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट जो था वो 5 साल तक नहीं चल सकता, लेकिन ये भी प्रूव हो गया कि कोलिजन गवर्नमेंट भी अपना जो टेन्यूअर है वो कंप्लीट कर सकते हैं और स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। तो ये भी कोलिजन गवर्नमेंट के माध्यम से प्रूव हो चुका है।